Yesterday I told you that you have to play with soap bubbles. आप में से कितने लोगों ने soap bubble बनाए थे? Yes. Okay, okay. Suraj also. Lenny, good. Manasvi, Shraddha, Yash. I was expecting one or two, but response is quite good. So those who have prepared, they must have seen some fantastic colors. Okay, and let me ask you a very simple question. Very simple question. What is the in India? What is the color of banana? Sir, its cover is yellow and inside it is white. Okay. How many of you are very sure about this answer? That banana is yellow. सर पकने से पहले हरा होता Green also. Okay, green also. Okay. Sir, there are many colors. It is red also. नहीं, मैं इंडिया में बात कर रहा हूँ और कॉमनली जैसे हम इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. Sir, in India it is yellow only. येलो ओनली. ओके, तो क्या बोलते हैं उसे, पका हुआ, रायपन. ठीक है, तो पका हुआ केला जो होता है वो येलो कलर का दिखता है. क्या वो येलो कलर का होता है? पकने से पहले हरा होता है बाद में पीला नहीं, पका हुआ, मैं पका हुआ बोल रहा हूँ. ठीक है, जो येलो कलर का दिख रहा है वो येलो कलर का होता है क्या? व्हाई कभी आई एम कभी आस्किंग उसपे यू. ब्लैक स्पॉट भी होते हैं. हाँ, ब्लैक स्पॉट होते हैं, राइट. पर उसका नॉर्मल कलर जो होता है वो येलो ही होता है. सर मैंने तो अब तक येलो ही देखा है. क्वाइट गुड. इट डिपेंड्स where you see this. It depends where you see this. If you take these bananas and put under the UV light, UV तो पता होगा आपको. Yes, sir. अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे रख दो, it will appear black or blue, not black but blue. You won't believe it, but you can just search yellow banana or banana under UV light. ऐसा क्यों होता है? वो तो येलो है, तो येलो दिखना चाहिए. Because most of the things depends on your source light. So if somebody says what is the color of this, then ask what is the source. ठीक है. Now if there is something white, और आपको अगर पीलिया हो गया, पीलिया को क्या कहते हैं, जॉन्डिस, काविड, राइट, आंखें पीली हो जाती है इसलिए उसको पीलिया बोलते हैं. उनको सब कुछ पीला ही दिखता है, येलो ओनली. Even if it is white, that person will see it as yellow. Or you just put some goggle, colorful goggle. तो आपको उसी टाइप का वो कलर दिखेगा, मैक्सिमम कलर जो है वो उसी टाइप के दिखेंगे. What does it mean? Whatever you are seeing may not be the same. It really depends on the source of light what you are using. Anukul has rightly said it's of all other colors. Okay, it absorbs. It absorbs all colors except yellow, and therefore it appears yellow. Clear? ये तो आपको पता है. White light ले लिया हमने, ठीक है. So suppose this is banana. I don't want to show the shape, and you put some white light here. Okay, this is white light. White light means sunlight. And then it will absorb all the colors except yellow.
So it will reflect the yellow because it is yellow. So therefore we see this as yellow. Okay? But what will happen you if you take out yellow from this white light except yellow? यहाँ पे हमने एक फिल्टर लगा दिया है जिसमें येलो कलर हमने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक येलो। अब आपको ये बनाना कौन से कलर का दिखेगा? सर मीन्स येलो कलर ब्लॉक कर दिया हमने। हाँ, हमने येलो कलर इंसिडेंट ही नहीं किया, येलो छोड़ के बाकी सब कलर इंसिडेंट कर दिए। तो आपको बनाना कौन से कलर का दिखेगा? सर मल्टी कलर होगा। नहीं। ब्लू। Okay, Manasvi says green. Yeah, Anukul is quite good in logic. Probably which color the banana would not absorb or reflect? Okay, it will not reflect yellow because there is no yellow. Okay, तो जो भी वो येलो के आसपास जो है वो अगर रिफ्लेक्ट कर देता है तो उस कलर का दिख जाएगा। Are you getting my point? Yes sir. So that means the incident light is very important. You can't say that this is green or this is yellow or this is. It depends on what light you are using. What light you are using. Okay. So जो insects रात को आते हैं ना, for example क्या बोलते हैं उसे? वटवा गुड़, चमगादड़, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसकी वजह से हाँ बैट, जिसकी वजह से ये कोरोना फैल रहा है। Now it cannot see in daytime, or owl it cannot see in daytime, so they see in night time. ठीक है? Even some dogs and cats, these people can also see in night. Which color they see? Because there is no white light in night, so they see some different colors. ठीक है? तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इंफ्रारेड इमेज। और आपने शायद उरी में देखा होगा, उरी में देखा आपने, वो ग्रीन कलर के गॉगल दिखाते हैं। ठीक है? और फिर वो जब वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, तो नाइट में क्या दिखेगा उनको? तो नाइट विजन गॉगल जो होते हैं वो दैट शोज सम काइंड ऑफ रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है? तो आदमी अगर है वहां पे तो उसकी इमेज दिखती है आपको, एग्जैक्टली सेम नहीं दिखेगा। ठीक है? तो जो भी थर्मल रेडिएशन आ रहा है उसका वो इमेज बनाते। ठीक है? सो इट इज नॉट, कलर इज नॉट एब्सोल्यूट, ये येलो है तो येलो ही है, नो, इट इज येलो इन व्हाइट लाइट। अगर उस पर कोई दूसरा कलर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी इट इन ब्लू लाइट देन इट मे अपीयर लाइक ब्लैक, क्योंकि ब्लू और येलो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, एग्जैक्टली अपोजिट है वो। ठीक है? तो ब्लू लाइट में अगर आप येलो पेपर देख रहे हैं तो देन इट विल अपीयर ब्लैक। सो आवर आईज आर नॉट परफेक्ट, ऑफ कोर्स वी आर नॉट परफेक्ट, but as far as vision is concerned, whatever we see is not actually what it is. So the nature cheat us regarding the vision. Okay, so whatever we are seeing, it depends on the source of the light. Okay? Now let me go for another file. So let us go for now the theoretical expression. We'll just model these films, thin films, like for example we talk about thin films, और कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, सीडी मैंने आपको दिखाया था, सीडी शायद मैंने रख दिया था।
So the color on this CD, I hope you can see this. Okay? You can see it colorful. Okay? So the color on the CD is because of the thin material that is coated here. यहाँ पे जो भी कोटिंग है वो बहुत थीन है, वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से ये अलग अलग कलर्स आपको दिखते हैं। अब ये क्यों दिखते हैं, या यू टॉक अबाउट दी फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई, or you talk about thin film of soap, so soap bubble, that is one of the best example. Okay. Or even I can show you something like this. Now can you see some reflection on this the spectacles? Yes, sir. ऐसे करके वो खिड़की दिखती है बाहर की, ठीक है। Yes. But if you go for some expensive glasses, which are not expensive, but you go for expensive glasses that is anti-reflecting, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होता, मैक्सिमम लाइट ट्रांसमिट होता है, तो आपको उस केस में ये रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। तो इसके ऊपर ही एक थीन फिल्म लगाई जाती है, बहुत ही थीन होती है। थीन मतलब कितना थीन, हाउ मच थीन? तो definition is like the thin film has the thickness, not delta, only T. The thickness T is of the order of 5000 angstrom. ठीक है, मतलब कितना? What is 5000 angstrom? नैनोमीटर में कितना हो जाएगा ये? इसलिए मैंने वो आपको क्विज दिया था, फिर 3 लोगों ने सॉल्व किया। 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू नैनोमीटर कितना हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 raised to power minus 10. Yes, 10 to the power minus 10 meter. Okay. Now we want it in nanometer, so this is just 5000 into nanometer is 10 to the power minus 9. Okay. This is 10 to the power minus 9. ठीक है, और बचा कितना फिर? 10 to the power minus 1. ठीक है, and this is meter, so 10 to the power minus 9 meter is nanometer, और ये 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 1 कितना हो जाएगा? 50,000. हाँ, 500. 500. 50,000 नहीं होगा, 500, and this is nanometer. 500 नैनोमीटर मतलब कितना, कितना ठीक हो गया? कन्वर्ट इट इनटू माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में कितना आएगा? So again you can write like 500 into 10 to the power minus 9 meter, or this is 500 into 10 to the power minus 6, that is the micrometer. बचा कितना? 10 to the power minus 3. अब 500 into 10 to the power minus 3 कितना आएगा? 0.5. 0.5 माइक्रोमीटर, मतलब कितना? Now this is very difficult question because what you can say that how much is half micrometer? Do you know anything which you can compare with? इतना thin जो है वो आप किसी से compare कर सकते हैं जो already we know about it. For example, human hair कितना thick होता है? Any idea? जनरल मतलब हो सकता है कम, मेरे तो बहुत ही थिकनेस कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा होगा, बट ऑन एन एवरेज कितना होगा? सर्च गूगल गूगल में सर्च करो, तब तक मैं डायग्राम निकालता हूँ, करो सर्च। कुछ पता चला? What is the thickness of 70 human? micrometers to 181 micrometers. हाँ,
70 to 180. Okay, Means 17, 17, 17. Okay, 17 माइक्रोमीटर टू 180 माइक्रोमीटर. 181. ठीक है, तो हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 100 माइक्रोमीटर के आसपास. ठीक है, प्लस माइनस कर दो आप. ठीक है, सबसे पतला होगा तो वो होगा 20 माइक्रोमीटर, 17 माइक्रोमीटर. ठीक है, ये इसका. इससे भी कम जो थिन फिल्म है, अब आप सोचो कि थिन फिल्म कितना छोटा होगा, कितना पतला होगा. दैट इज व्हाट द थिन फिल्म इज. ठीक है, now that is what we are talking about here, and that is what I just assume that this is the thickness of this thin film. It appears too long, too big, but this is what mathematically what we are trying to say. So this thickness is about 0.5 micrometer. मतलब ऐसे अगर मान लो कि 10, 20, 30 फिल्म, थिन फिल्म लेते हैं, तब जाके ये थिकनेस ऑफ दी हेयर हो जाएगा. ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली थिनेस्ट हेयर जो है उससे भी 30 टाइम्स थिनर वो हो गया आपका थिन फिल्म. ओके, समझ में आ गया. Yes, sir. In soap film also it is very very thin, very thin. ठीक है, now why we are talking about these thin films? Okay, because we are just depositing the thin film on the CD. Okay, we are depositing thin film on almost every object, सभी पे होती है. ठीक है, अलग अलग, मतलब कुछ रिफ्लेक्टिंग होती है, कुछ नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है, वगैरह वगैरह. ठीक है, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे. So now we consider this thin film, and the thickness of the thin film is 0.5 micrometer, and the light is incident on this. Let us consider at 40 degree. मैं इसको बहुत बारीकी से बना रहा हूँ. We can draw this figure. Now, if you want to find out what is the angle of incidence, कितना हो जाएगा? ये ऐसे मैंने डायग्राम निकाला, ये एंगल 40 डिग्री है. What is the angle of incidence in this case? हाँ, 1/4. आवाज नहीं आ रही है मुझे ठीक से. What is the angle of incidence? अरे, आप लोगों ने तो पढ़ा है ना इसको. अगर आवाज ठीक से नहीं आ रही तो यू कैन टाइप, देयर इज नो प्रॉब्लम. Yeah, let me see. Okay, Shraddha says 50. Sure? 100%? Yes, because whatever the angle of incidence we take, it is from the normal, from. ठीक है, एंगल की भी डायरेक्शन रहेगी. दिस विल बी 50 डिग्री. ओके, so this is the angle of incidence. Obviously, at this point, this is the upper surface of the thin film and this is the lower surface of the thin film. ठीक है, इसको मैंने बहुत एग्जैगरेट कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया. ठीक है, तो दिस विल बी 50, सॉरी, हाँ 50 लिखा है. नाउ this will be again 50 degree. Okay, this is related to horizontal, so I can draw the reflected beam here. This is reflected and there is nothing new about it. इसको हमें पता ही है 50 डिग्री है और ये रिफ्लेक्टेड है. ठीक है, लेट मी गिव सम नेम. से point A, it coincides with point B and it goes to C. So obviously the incident ray is AB and reflected ray is BC.
Now question is, if the angle of incidence is 50 degree, what will be the angle of refraction? If the refractive index of this is approximately 1.5, what is the angle of refraction? Can you calculate? I hope you have the calculators. It is simply, we know that mu equal to sin I divided by sin R. Now we want to find out the value of R. So sin R equal to sin I divided by mu. Therefore R equal to sin inverse of this value. बताओ कितना डिग्री हो रहा है? Anyone? Me? You can just see here sin 50. Huh? Why it is showing negative? Okay, 50 रेडियन हो गया ये, 50 in degrees. Okay. कैलकुलेटर नहीं है यहाँ पे. Calculator in degrees. Scientific calculator. You can just find out sin and 50. So it is 0.76. Okay. So I can write here as sin 50 is 0.76 and divided by 1.5. कितना आएगा ये? 0.51. 0.1. Okay. Now you just take the sin inverse of 0.5. तो कितना आता है? Clear. Arc sin 0.5. 30 degree. That is quite obvious. Half का sin inverse. So this is 30 degree. Now here I just draw the angle of 30 degree. 30 degree कहाँ से लेना है मुझे? सरफेस से या नॉर्मल से? सरफेस सरफेस से नॉर्मल से? Normal. नॉर्मल से. अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये सही है क्या? नो वहाँ पे 30 दिखना चाहिए. अपोजिट डायरेक्शन इन फ्लैट. देखो यहाँ पे जो है ना एंगल, दिस इज 0. तो द एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस. ठीक है. एंड दिस एंगल इज, इफ आई जस्ट शो यू 30 डिग्री. ठीक है. 30 डिग्री अगर ऐसा लिया मैंने तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल. राइट. समझ में आ रहा है? इसलिए मुझे ये ड्रॉ करते वक्त 60 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा. अब देखो ये जा रहा है ये इधर. ठीक है. So I just taking one example. Now this is the angle of refraction and this angle of refraction will be 30 degree. ये 60 हो जाएगा R. ठीक है. Now we draw a normal here because यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा ना, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम बॉटम टू टॉप. दैट इज नॉट द प्रॉपर वे. टॉप टू बॉटम होना चाहिए. जानबूझ के आपको दिखा है.
Now, if I take this angle with respect to normal, ये कितना हो जाएगा? 30. Yes, it will be 30 degree. This is same as that of this. इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। पक्का? आई डोंट नो, मैं मराठी मीडियम में पढ़ा हूं तो आई डोंट नो इंग्लिश वर्ड फॉर दिस। ओके, नाउ अगेन यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट होता है तो लाइट ऐसे जाएगा, ठीक है, इंटरनली। ये जो है वो अंदर का पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद कहाँ जाएगा, ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा लाइट? यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बी एंड देन सी डी एंड ई। ई से ये रिफ्रैक्ट होगा एयर में, दिस एयर, दिस ऑल्सो एयर, ठीक है। तो ये जो थीन फिल्म आप देख रहे हैं वो थीन फिल्म कौन सी है? इट इज समथिंग दैट यू आर जस्ट क्रिएटेड थीन फिल्म हियर, ओके, एंड you are taking this surface and the other surface, okay, internally। ये जो इधर का सरफेस लेगा वो इसका इंटरनल है, ठीक है, और ये बाहर का, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्शन होगा बाहर के सरफेस से, एक रिफ्लेक्शन होगा अंदर के सरफेस से। समझ में आ रहा है आपको? जैसे ग्लास है ना, ग्लास अगर फॉर एग्जांपल ये लेते हैं तो इसका एक सरफेस ये हो गया, ठीक है, ये जो बाहर दिख रहा है आपको, और इसका ये दूसरा सरफेस इस साइड में रहेगा, ठीक है, लेकिन वो उससे अंदर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाहर से नहीं, अंदर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। आगे ध्यान में, तो ये दो रिफ्लेक्शन हो गए, एक ये हो गया बी पॉइंट से और दूसरा हो गया डी पॉइंट से, ठीक है। फिर यहां से ये किधर जाएगा? यहाँ पे मुझे कितना लेना चाहिए एंगल? 50 ले लूं, सही है? नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर से हम अगर ये लॉ यूज करते हैं, कौन सा लॉ है किसने बताया था ये? अरे ये किसने बताया था? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, ये किसने बताया था? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। भूल गए क्या इतनी जल्दी? सो दीज टू रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर। इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद बहुत ही अच्छे से प्यारा दिख रहा है वो, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट whether the phase of this ray and this ray is same or different, then what construction we do? कौन सा कंस्ट्रक्शन हम करते हैं? ये किया है आप लोगों ने 12th में? यहाँ से ऐसे कंस्ट्रक्शन करते हैं और यहाँ फिर परपेंडिकुलर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर आना चाहिए, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन समझ में आया? सपोज पॉइंट एन, सो ई एन इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं, पक्का समझ में आ गया? फिर से एक बार बताओ। यस सर। ओके, सी दिस इज द थीन फिल्म। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये थीन फिल्म है। थीन फिल्म के दो अलग अलग फेसेस रहेंगे, दिस इज द अपर फेस, दिस इज द लोअर फेस। अगर आप दूसरी तरफ से देखते तो इधर से देखेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन से। ये आप इधर से देख रहे हैं। द लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस थिन फिल्म एट से पॉइंट बी। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस फॉर दिस थिन फिल्म। वन,
that it will reflect back and it will go into BC direction. Second, it will refract inside the material, inside the thin film, and then it will be reflecting back from the second surface. दूसरे surface से internal reflection होगा, internally reflected. Refraction भी होगा, नहीं ऐसा नहीं, but we will not consider at this moment. ठीक है, ये refraction अभी consider नहीं करेंगे हम, because we are not interested in it. Then it will reflect back and then it refracts from point E in the direction say EF. Okay. Now we make the construction so that EN is perpendicular to BC. Now what is EN? EN को क्या बोलते हैं? Any idea? Refracted? refracted ray. No, EN is not refracted ray. EF is refracted ray and BC is reflected ray. Okay. ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया. This one is again 50 degree. So this is a reflection. Whereas, ray. huh? Emergent ray. नहीं, emergent ray नहीं. ये EN जो है, EN is perpendicular to these two rays. Rays को ये perpendicular है. Now I will take you to the 12th standard. Okay. So this is the point, and then you have this kind of waves coming out, and this is the ray. ये इसको क्या बोलते हैं? जो हमेशा ही रे को परपेंडिकुलर रहता है. You take ray like this or like this, it is always perpendicular. If you take the plane wave in like this and the rays are like this, so these are the rays. ये क्या चीज है? इसको क्या बोलते हैं? हाइजेंस थ्योरी, क्रिस्टियन हाइजेन नहीं, दैट इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट. याद आया कुछ? Yes, sir. Yes. Now sir. what is mean by वेव फ्रंट? याद आया तो बताओ फिर. वेव फ्रंट क्या होता है? What is wavefront? Wavefront has this line has the same phase. इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी एक ही फेज में होंगे. ठीक है, डजंट मैटर जो भी होगा वो, डजंट मैटर इट इज 0 और 180 और व्हाट इट मे बी. ठीक है, ये सभी के सभी एक ही फेज में होंगे. सिमिलरली इफ यू हैव द वेवफ्रंट एज EN, if E and N point are in the same phase, तो कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा? सेम फेज में होते तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है? Constructive. Yes, constructive interference. And then this point or this film will appear bright. Basically, the whole film will appear bright. But if E and N are not in phase, they are out of phase, then it will be a destructive interference. And in that case, this film will appear dark. आगे ध्यान में, क्लियर? डायग्राम क्लियर हो गई? Now what exactly you are trying to find out? Okay. Here, if the path difference, optical path, if it is equal to say, n lambda, then it appears bright. ये आप लोगों ने 12th में पढ़ा है. ठीक है. And if it is 2n minus 1 lambda by 2, sometimes you write minus 1, sometimes you write plus 1 lambda by 2, then it is dark. ठीक है, ये हमें कंडीशंस पता है. Now
what we will do is we'll try to find out the optical part. तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? व्हाट इज पाथ डिफरेंस? पाथ है दो लाइट के, कौन से है पाथ? बी पॉइंट तक तो ये कॉमन ही है, ए बी इज कॉमन। बी पॉइंट से ये इस तरफ गया, दूसरा पार्ट इधर गया और इधर गया, ठीक है। आगे ध्यान में, यस नो, पाथ कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो कि वर्धा से आपको नागपुर जाना है, कौन से रोड से जाएंगे? हाईवे से जाएंगे सर। अगर हाईवे बंद है तो व्हाट इज द अल्टरनेट? नहीं, दूसरा कोई रोड ही नहीं है। सर कोई ऐसा रास्ता जो कम वक्त पे जल्दी पहुंचा दे। नहीं, नहीं हमें सर, वक्त से नहीं रहता है। वर्धा से नागपुर हाईवे बंद है, तो यहाँ से सर हिंगन घाट होते हुए फिर वहां से नागपुर का जो रोड निकलेगा वहां से जाएंगे। वेरी गुड, तो यू हैव टू पाथ्स। अब अगर मैं ये पूछता हूँ कि ये हिंगन घाट वाला रोड जो है वो कितना ज्यादा डिस्टेंस लेगा, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ से हिंगन घाट और वहां से नागपुर कितना किलोमीटर है, माइनस डायरेक्ट जो हाईवे है वो कितना किलोमीटर है। दो अलग अलग पाथ है ना, तो दो पाथ का डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Okay. So here the same thing we are doing here. दो कौन से पाथ है? So path 1 minus path 2, जो भी ग्रेटर होगा उसमें से वो छोटा वाला निकाल देंगे। तो पाथ 1 कौन सा है? बी पॉइंट से एक तो एन की तरफ जा रहा है, ठीक है, और दूसरा बी पॉइंट से डी आया और डी से ई आया। Why we are taking only this? Because we want to find out the path difference at this line, EN line. Okay, EN line पे कितना पाथ डिफरेंस है, ठीक है। मान लो कि दो लोग यहाँ से निकले वर्धा से, एक वाया हिंगन घाट गया और एक वाया ये गया, कौन सा, केरझर फॉर एग्जाम्पल। तो 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद कौन कहाँ पे है, कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, ये हम डिसाइड करेंगे, राइट। एंड देन वी कैन जस्ट फाइंड आउट कि टाइम डिफरेंस निकाल सकते हैं या पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं, कितना किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे वी हाउ टू फाइंड आउट। हाँ, हिंगन घाट से सर 41 किलोमीटर ज्यादा पड़ेगा। अच्छा नहीं, मुझे नंबर नहीं चाहिए था, बट इट्स ओके। सो दिस इज व्हाट द पार्ट डिफरेंस इज, 41 किलोमीटर इन केस ऑफ Varda Nagpur distance. Okay. In case of this, we'll go from this is similar B to D. ये वर्धा से हिंगन घाट से नागपुर, और ये डायरेक्ट है BN, ठीक है। So path 1 is BD plus DE, और पार्ट 2 क्या है? Just direct BN. That is what the path difference is. आ गया ध्यान में? यस सर। Any doubt, any question? Go ahead, you can ask question. अब ये 3 वैल्यू अगर आपको पता है तो देन यू कैन फाइंड आउट द पार्ट डिफरेंस, राइट। BD आपको पता होना चाहिए, DE पता होना चाहिए और BN पता होना चाहिए। अब आपके पास वैल्यूज क्या है? ये T दिया है आपको, ये I है, ये R है। इन सब को, ये तीनों जो वैल्यू है, इन सबको इन टर्म्स ऑफ T एंड R ये आपको निकालना। R मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये आपको निकालना। तो यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम एंड यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंसेस, okay. If you have any question, you can ask. Just 1 second.